So students, welcome to the class today. How are you all doing? I hope you all are doing fine. Yes. So children, story of Palampur, village Palampur. Yes, we are discussing it in detail, and we need to understand that this story that we are talking about is explaining us the rural India, is explaining about the problems of the people in the villages. पालमपुर नाम के एक विलेज के बारे में हम बात कर रहे हैं. Though it is an imaginary village, but look at the kind of activities that are happening in this village. Got it? काफी सारी चीजें हमको यहाँ पे क्लियर हो रही हैं. We have understood about the changes that had happened after 1960. HYV seeds के साथ chemical fertilizers use किया. अब क्या हो गया, जो हमने लास्ट क्लास में I had already shown it to you that the wheat that was grown from traditional variety से पालमपुर में पहले 1300 kg wheat होता था, and HYV seed से it has reached to 3200 kg per hectare. अरे वाह. So wheat production increased. भैया पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही. काफी पैसा भी इन्वेस्ट किया ना. These people have invested lot of money. फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, HYV seeds खरीदने के लिए पैसा चाहिए. You have to set up pumps for water arrangement is being done. सारी चीजें जब एक साथ हो रही हैं तो obviously the yield will increase. Okay, wheat production increased from 1300 kg per hectare to 3200 kg per hectare. Increased from 1300 kg per hectare to 3200 kg per hectare. Of whooping rice, काफी प्रोडक्शन बढ़ गया. कितना हो गया? इट वॉज 3-fold आई थिंक सो. 3 गुना. 2 गुना होता तो 1300 का 2600 होता ना. लगभग 2.5 गुना तो बढ़ ही गया. इट वॉज 2.5 times इंक्रीज. अब फार्मर्स नाउ हैड ग्रेट अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट. वो अपने घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजारों में ले जाके भी सेल कर सकते हैं. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द इनकम ऑफ द फैमिली हैज इंक्रीज्ड. पहले उधार ले लेके काम चलाना पड़ता था, अभी उधार लेने की जरूरत नहीं है. They do not have to take money from somebody. Enough money is there, enough food is there to eat. अपना भी पेट भर सकते हैं, अपने परिवार का भी. अब there is one table that was given there. अभी I'll be showing it to you. Both the crops, green revolution was equally successful for pulses as well as for the wheat. ये टेबल हम देखेंगे और उसके बाद we have to understand what kind of increase was there. Got it? HYV seeds का इस्तेमाल कर लिया, chemical fertilizers का इस्तेमाल कर लिया, and look at the whooping increase in Palampur. Of course it's imaginary, लेकिन कहीं ना कहीं पे इट हैज बीन कंपेयर टू द विलेजेस ऑफ इंडिया. इंडियन विलेजेस से कहीं तो कुछ तो कंपेयर हुआ होगा ना माय डियर स्टूडेंट्स. समवेयर सम कंपैरिजन माइट हैव बीन देयर, जिसमें हमको पता चल रहा है कि ये जो है इंक्रीज तो हुआ है. देयर हैज बीन अ प्रॉपर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, which is something that is very encouraging. बहुत ही encouraging है. और this
has given a good impetus to the farmers. फार्मर्स की हिम्मत कितनी बढ़ गई होगी, कहाँ पहले इतना परेशान रहते होंगे, अब with the increase in production, lot of things have changed in the lives of the farmers. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया था. नाउ दिस इज व्हाट इज द टॉपिक ऑल अबाउट. विल द लैंड सस्टेन. जमीन की बात बाद में करते हैं, ठीक है. आई विल कम टू दिस लेटर ऑन. आई एम अ ह्यूमन बीइंग. आई एम breathing, inhaling, exhaling. Heart is pumping blood पूरे शरीर में. कैपेसिटी मेरे को काम करने की है 5 to 6 hours कंटिन्यूअसली. थोड़ा और करवा लेंगे तो 8 hours. अब मेरे को कुछ लोगों ने कहा कि भैया ऐसा है कि 12 to 15 hours करना पड़ेगा. So I say no, I can't. मैं 12-15 घंटे काम नहीं कर सकती हूँ. So they'll say अरे नहीं नहीं, we'll give you protein drink देंगे, हम आपको प्रोटीन ड्रिंक देंगे, चाय देंगे, and all kinds of fruits and vegetables and whatever you require. Please have the intake. अच्छे से खाना वाना खाओ. क्यों नहीं कर सकते हो? 8 घंटा काम कर सकते हो तो क्या 12-15 घंटा काम नहीं कर सकते हो? So I'll think कि बाप रे बाबा इतना काम. But then they'll say no, we'll pay you also double. अभी जितना मिल रहा है इसका दुगना पैसा देंगे. So अब I'm a human being, I'm greedy. So I'll say हाँ ठीक है. तो अब सुबह मेरे को, मैं सुबह मॉर्निंग 6 o'clock I start my work and till evening 6 o'clock I'm working. बीच में they are giving me food, protein, fruits, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी चाहिए मेरे से काम करा रहे हैं, मुझे खिला रहे हैं. हार्ट कह रहा है सो लो थोड़ा, आराम कर लो थोड़ा. आई डोंट लिसन टू दैट. आई कीप ऑन वर्किंग वर्किंग वर्किंग. द नेचुरल बॉडी दैट गॉड हैज गिवन मी, आई हैव स्टार्टेड ओवर यूजिंग दैट बॉडी. अब आते हैं इस पे. Natural land that God has given to the people in Palampur. Traditional method से खेती हो रही थी. ऐसा नहीं है भूखे मर रहे थे. 1300 kg of wheat from 1 hectare of land is enough. काफी है सस्टेन करने के लिए. लोग क्या पहले कर रहे थे, लेकिन यील्ड बढ़ाना था. सेम पीस ऑफ लैंड और उसमें पेस्टिसाइड और केमिकल और इंसेक्टिसाइड. अब क्या होता है, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स. गॉड हैज गिवन अस. हमने नहीं बनाया है, ये मिट्टी हमने नहीं बनाई है, ठीक है. लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स. गॉट इट. इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज. मैंने ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल दिया. चिल्ड्रन, this is very much applicable to the human being also. It is necessary to be careful in its use. It is necessary to be careful in its use. बहुत संभाल के इसका इस्तेमाल करना है. अब क्या हुआ, scientific reports indicate modern farming methods have overused the natural resource. Scientific reports claim that modern farming methods have overused the natural resource.
नेचर ने जो दिया था हमको, वॉट एवर गिफ्ट नेचर हैज गिवन, उसका हमने गलत इस्तेमाल किया। यस चिल्ड्रन, बिलीव मी, गलत इस्तेमाल ही हुआ है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स। जितना हो रहा था उतने पे ही रहना देना था। ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड। अब लुक एट द आफ्टर इफेक्ट्स। खूब बहुत अच्छे से यूजिंग द इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, overuse. Green revolution is associated with the laws of soil fertility. Green revolution is associated with the loss of, सबसे पहला हमें नुकसान नजर आ रहा है soil fertility। एक ही पीस ऑफ लैंड से उतनी ही जमीन तो है, अरे कितना काम करोगे उतनी जमीन से, ठीक है। एंड सॉइल फर्टिलिटी इज देयर, क्यों? ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल यूज करने लग गए ना। अननेचुरल, इट इज अननेचुरल, इट इज नॉट नेचुरल। काउ डंग इज नेचुरल, ठीक है, due to use of chemical fertilizers. Chemical fertilizers का हमने इस्तेमाल किया। अब there is continuous use of ground water। सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ, एक तो सॉइल खराब हो गई, ओवर यूज आप कर रहे हैं, सॉइल लॉस तो हुआ ही है, प्लस कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, वाटर ट्यूबवेल से पानी निकाले चली जा रहे हैं, पानी निकाली चली जा रहे हैं। इरिगेशन हैज लेड टू, for irrigation has led to depletion of water level। अरे आप इतना ओवर यूज करोगे, पानी लगातार निकालते जा रहे हो, तो वो पानी अंडरग्राउंड वाटर भी तो खत्म हो जाएगा। सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर, सॉइल जो है 2 दिन में नहीं बनता, इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू मेक 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। इतना सॉइल बनाने के लिए लाखों साल लग जाते हैं, बिलीव मी चिल्ड्रन, दैट्स द फैक्ट। सो सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर इयर्स। सॉइल फर्टिलिटी एंड groundwater are built up over years। सालों लग जाते हैं। Got it? Once destroyed, it is very difficult to restore them। Once destroyed, it is very difficult to restore them। कहां से लाएंगे पानी भैया? सारा पानी निकाल लिया है, सॉइल की फर्टिलिटी अभी कैसे? सॉइल पहले क्या करते थे ना लोग, सॉइल को दे यूज टू लीव द सॉइल फॉर अ ईयर और 2। फैलो, उसको कहते थे फैलो सॉइल। सॉइल हैज बीन लेफ्ट। अरे उनको भी तो फर्टिलिटी चाहिए, हवा चाहिए, अब पानी चाहिए, वाटर इज नीडेड, एयर इज नीडेड। सॉइल इज गिविंग अ न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स। क्या सॉइल को न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है? तो फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तो होना चाहिए, लेकिन वी हैव टू सी कि इट इज नॉट डिस्ट्रॉइंग द सॉइल फर्टिलिटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
and land distribution that is there in Palampur, we need to understand. क्योंकि अभी ये सारी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद एक लेटर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को आपको लिखना है. यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एग्रीकल्चर मिनिस्टर and tell him how the use of chemical fertilizers can be harmful. क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स में ऐसी चीजें होती है, सच थिंग्स आर फाउंड विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल इन प्लांट्स, लेकिन इट कैन नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग टाइम. गॉट इट? कितना नुकसान है इससे, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. And soil से निकल के this chemical that we are putting in the soil, it can move from the soil and pollute the groundwater, river, lake. Chemical fertilizers, what are the minus points in chemical fertilizers? It kills the bacteria and other microorganism. इसका मतलब क्या है कि once they are used, soil will become less fertile. जिस सॉइल से इतनी ज्यादा हमको आराम था, वो सॉइल इज नाउ नो मोर ऑफ आवर यूज. वो मिट्टी हमारे किसी काम की नहीं रह गई है. एंड द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पंजाब में तो इसका वी कैन सी द क्लियर एग्जाम्पल इन पंजाब. हाईएस्ट इन द कंट्री कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा पंजाब में हो रहा है. एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से क्या हो गया है, द सॉइल हैज डिग्रेडेड, सॉइल हेल्थ हैज कम डाउन. एग्जाम्पल, क्लियर कट एग्जाम्पल इज पंजाब. पंजाब फार्मर्स क्या है, अभी दे आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स. अब उनका प्रोडक्शन लेवल हैज गॉन लो. हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने के बाद भी वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है जो पहले होता था. Are you understanding? These are some of the factors that needs to be taken care of. मतलब इतना अगर नुकसान पंजाब में हुआ है, this is a alert for all of us. हमारे लिए ये एक बहुत ही alarming situation है. अभी नहीं समझेंगे तो बाद में नहीं समझ में आएगा. We won't be able to understand it later. ऐसा नहीं हो बहुत देर हो जाए. More and more chemical fertilizers, other inputs, सेम प्रोडक्शन लेवल, सेम लैंड है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग फास्ट. पहले 100 रुपए में भी एक गरीब फार्मर अपने खेत पे खेती कर लेता था, लेकिन अब उसके पास 1000 रुपए भी हैं तो भी वो उतनी खेती अच्छे से नहीं कर पा रहा. गॉट इट? सो नाउ यू सी कि इन द वेग ऑफ डेवलपमेंट, in the way of bringing the land, more and more land under cultivation, using the same land further, आगे यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, उसका नुकसान अब हमको दिखने लग गया. Now we are able to see the losses that we are facing because of this use and overuse of land. Are you understanding? इतनी सारी चीजें जब हम करेंगे, when we are carrying on with so many things, so we have to understand the land distribution pattern in Palampur. How is land distributed between the farmers of Palampur? How is land distributed between the farmers of Palampur? It is very beautifully mentioned in your chapter. आपके चैप्टर में, आपके इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से ड्राइंग करके बताया गया है द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन पालमपुर. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. कुछ चीजें हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड. सारे लोगों के पास बहुत जमीन नहीं है. नॉट ऑल द पीपल
engaged in cultivation have sufficient land. सबके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है. Got it? 1/3 of the 450 families are landless. मतलब क्या हुआ? No land for cultivation. 450 families out of 450 families, 1/3 of them do not have land for cultivation. जमीन है ही नहीं, कल्टीवेशन के लिए इनके पास जमीन नहीं है. मीन्स 150 families have no land for cultivation. 150 families have no land for cultivation. अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है. ये 150 families क्या काम कर रहे हैं? What are these? इनके पास तो जमीन नहीं है अपनी कल्टीवेशन के लिए. They do not have land for cultivation. क्या काम कर रहे हैं? बाकी के जो है 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. 240 families cultivate small plot of lands छोटी छोटी जमीनें हैं उसको ये लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, विच इज वेरी लेस. छोटी छोटी जमीन है ना, विच इज लेस देन 2 hectares इन साइज. क्या करेंगे इतनी छोटी जमीन पे खेती, कितना उगा लेंगे? तो अब इसमें क्या हो रहा है, 2 hectares से लेस भी जमीन है, उसके ऊपर अगर खेती कर भी रहे हैं तो भी दे आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट. मीन्स उतना पैसे की इनकम नहीं हो रही है जितनी की होनी चाहिए. ओके, सो नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड इज, अब हमको ये समझना है कि इन लोगों का काम कैसे चलेगा. हाउ विल दीज पीपल वर्क? लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन ऑन दिस लैंड हाउ विल दे वर्क, बुक में ही दिखाती हूं आपको. आई विल शो इट टू यू इन द बुक इटसेल्फ. So students, what we have understood today is that now HYV seeds are being used. The yield has increased. 1300 kg हो गया है per hectare HYV seeds use करके. And because of the increase in the yield, 1300 से the yield has gone up to 3200 kg per hectare. Farmers have a greater amount of surplus wheat. They are selling it in the market. And some questions were there related to that. Children, you have to solve these questions. Please remember this. And what we have done today is, आज जो हम लोगों ने किया है, this is what is the condition of the land that is there. Okay, green revolution हुआ है, loss of soil fertility, these points actually we have discussed it in detail. Children, you have to go through it, and you have to do this activity that is mentioned here, that you have to write a letter to the agriculture minister in your own words, telling him how the use of chemical fertilizer is harmful, what are the methods of use of these chemical fertilizers. And chemical fertilizers have provided, अब chemical fertilizer के यूज़ से ज़मीन को कितनी नुकसान हो रही है, how much loss
is the land facing, you need to make it very clear. Points यहाँ पे दिए हुए हैं. But and letter writing format you have already studied in English. English में आपने letter writing format आपने किया हुआ है. So you can easily understand that newspapers and magazines that are there, उसके लिए agriculture minister को आपको letter लिखना है that chemical fertilizers, use of chemical fertilizers are being very harmful. And chemical fertilizers harmful इसलिए हैं because it is dissolving in water and it is available to the plants, may not be retained in the soil for long. ये हम लोगों ने पढ़ा है आज. तो आप when you are writing the letter to the agriculture minister, आप जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लेटर लिखेंगे तो उसमें what are the points that you need to highlight. All those points related to the chemical fertilizer is very clearly mentioned here. Okay. सॉइल से वो escape कर सकते हैं and pollute the ground water, rivers, lakes. केमिकल फर्टिलाइज़र से बैक्टीरिया भी किल हो रहे हैं एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी किल हो रहे हैं इन द सॉइल. इसका मतलब ये है कि सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर. इसके पहले की तरह सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी एंड कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इज देयर. पंजाब में किस तरह से सॉइल फर्टिलिटी हैज़ गॉन लो, दिस यू हैव अंडरस्टूड. पंजाब फार्मर्स को अब they are forced to use more and more chemical fertilizers. अब वो जो हैं chemical fertilizers उनको यूज़ करने के लिए फोर्स किया जा रहा है. इसमें सेम प्रोडक्शन लेवल जो है वो नहीं अचीव करना है, दैट इज़ देयर. इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट. अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, ये जो हम लोगों ने देखा इसमें सर्टेन नंबर्स आर देयर चिल्ड्रन दैट यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन. पहला तो आपको ये समझना है कि पालमपुर में कितनी फैमिलीज़ है. 450 फैमिलीज़ आर देयर, सब लैंडलेस हैं. इसमें से 150 फैमिलीज़ आर दलित, दे हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन. बाकी की जो फैमिलीज़ हैं who are owning land, 240 families are cultivating small plots of land. छोटी छोटे लैंड कम कर रहे हैं, less than 2 hectares in size. and ऐसे लैंड पे जब कल्टिवेशन होता है, कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स doesn't bring adequate income to the farmer family. फार्मर के फैमिली को सही तरीके से इनकम नहीं मिल पाती है. गॉट इट. तो अभी इसमें वन एग्जाम्पल इज गिवन जिसमें कि हम गोविंद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. 1960 में गोविंद इज अ फार्मर, ही वॉज अ फार्मर ऑफ कोर्स. 2.25 हेक्टेयर ऑफ लैंड वॉज देयर, लार्जली अनइरिगेटेड लैंड था. बहुत उसके पास जितना भी लैंड था, ही इज़ अ वेरी पुअर फार्मर. तो बहुत सारे पैसे वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है इन एग्रीकल्चर. तो अब ये विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स, 3 बेटे इसके हैं, गोविंद ने लैंड कल्टीवेट किया एंड दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबली. बहुत कंफर्टेबली वो नहीं रह रहे थे. फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ. फैमिली ने किसी तरह से खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया. कैसे किया? हाउ द फैमिली हैव मैनेज टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स. एक्स्ट्रा इनकम थोड़ी सी, जो उनके पास एक भैंस थी उससे उनको थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो रही. इसके बाद गोविंद डाइड. आफ्टर सम ईयर्स गोविंद डाइड. ये लैंड जो है इसके 3 बेटों में डिवाइड हो गई. इट वॉज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स. एवरी सन नाउ हैड अ प्लॉट ऑफ लैंड विच इज 0.75 हेक्टेयर इन साइज एंड इम्प्रूव्ड इरीगेशन इज देयर. मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बाद भी गोविंद के सन्स आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड. इतना के बाद भी इन लोगों को पूरी तरीके से उस लैंड से मदद नहीं मिल पा रही है एंड दे आर लुकिंग फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर. पूरे साल उनको काम खोजना पड़ता है.
That is what is very clearly mentioned here, children. Please try to understand. ये गोविंद का, जब भी आप लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डिस्कस करेंगे अबाउट पालमपुर, यू हैव गोविंद। बाकी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ये यहाँ पे एक पिक्चर थ्रू समझाया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, कितने लैंड पे कल्टीवेशन हो रहा है एंड हाउ इट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. Further, we'll be discussing in the next class tomorrow, children. Till then, thank you so much and all the best to you.